Good evening, my dear student. I'm welcoming you to my YouTube channel, Learning Island. Today, I have come up with a solution and a basic explanation and understanding of the chapter 7 plus 6 from book Ganita Prakash as per the new syllabus of NCERT NEP. So this is the part 1 video on this chapter. So no tension, I will start the discussion on the basics very beginning. Okay, my dear students. So this will be very beginning level discussion. So let us be attentive and participative and interactive so that we can understand and enjoy the session. Okay. So without any delay, let us start the main topics over here. That is, see, this is your book chapter 7 fraction. Okay, so from the name it is clear to you that fraction, what is fraction? Okay, fraction means a part, it means a part of something, part of something or some object. Here you see, here is a circle. Okay, in the circle they have made colored. There is total कितना पार्ट है? एक इक्वल पार्ट, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, यानी कि टोटल हो गया 12। 12 में से ये कलर वाला कितना है? 6। तो ये हो गया 6/12। दिस इज द फ्रिक्शन। मतलब टोटल में से कितना है? फ्रॉम होल a portion will be taken. Do you know, you all have eaten pizza? I think you know how the pizza looks like. So if you take only this portion from here, it will look like this. If you take one portion from pizza, it will like this. So this portion I have taken out from the whole portion. So total it will be 3 portion. So out of 3, I have taken 1 portion. So this is fraction. Okay. To cut something from a whole part. Okay. So this is your understanding. But let us go through the textbook. What type of idea regarding the fraction they have given will be more clear. Okay. So I am moving down, I'm scrolling down. Okay. So see, this is recall that when some whole number of these things are shared equally among some number of people, fraction tell us how much each share is. Okay. ये पे देखो, do you remember if one roti is divided equally between 2 children, how much roti will each child get? देखो यहाँ पे हाफ हाफ किया रोटी को, अगर हाफ किया रोटी को कितना मिलेगा? हाफ मिलेगा। सीधी सी बात है, इसमें पूछना है क्या है? रोटी को हाफ किया तो हाफ ही मिलेगा ना, पूरा तो नहीं मिलेगा ना। ऐसे एक हाफ शेयर को मिलेगा, ये जो हाफ होल का पूरा में से, तो क्या होगा? ये दो हिस्से है ना, दो में से एक खाएगा कोई ना कोई, इसको बोलेगा 1/2। ठीक है ना। ये एक लड़का ये खाएगा आधा, ये लड़का ये खाएगा आधा। सो ये हो गया फ्रैक्शन। ठीक है। each child will get half a roti. So the fraction 1/2 is written as 1/2। 1/2 मतलब यहाँ पे 2 हाफ है ना, वो एक हाफ दो हाफ, दोनों में से एक खाएगा तो वो हो गया 1/2। इसको लिखता है 1/2। ठीक है ना। वी ऑल्सो समटाइम्स रीड दिस एज ए 1/2। क्या बोलते हैं इसको? 1/2। 1/, अपन मतलब नीचे आता है। सो 1/2। ठीक है। 1/2, 1/2 और 1/2, ये तीन तरीके से बोल सकते हैं इसको। अब मुक्ता, इफ one roti is equally shared among 4 children, how much roti will one get? देखो एक रोटी को अगर ये पे दिखाया गया, देखो 4 हिस्से में डिवाइड किया है, तो ये पे 4 बंदे हैं, तो एक एक को कितना मिलेगा? 4 में से एक। ये 4 टुकड़ा हो गया, 1, 2, 3, 4, 4 टुकड़े में से एक मिलेगा।
एक एक बंदे को, ठीक है ना। तो ये हो गया 1/4 या 1/4, ठीक है। इस तरह से हम समझेंगे फ्रैक्शन को, ठीक है। आगे में और भी दिया गया, ये तो जस्ट शुरुआत है, ये तो स्टोरी, ठीक है। कि ये बुक में स्टोरी बहुत मिलेगा आप लोगों को, ये पढ़ो और इसमें से जिस्ट निकालो, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस देना है, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन समझ में आ गया। किसी चीज को मतलब टुकड़ा करना, इसको अलग अलग पीस करना, डिफरेंट पीस में, ठीक है। इक्वल पीस, इक्वल भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, आप दिखाएंगे बाद में, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो रोटी का टुकड़ा क्या, आप देखो, अभी मैंने एक चीज डिस्कस करता हूँ जो अपन को आगे में जाके मिलेगा। ये जो इन्होंने एक रोटी को एक रोटी को पहले दो हिस्सा किया था, फिर एक रोटी को चार हिस्सा किया था, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो गया 1/2, ये भी हो गया 1/2। यहाँ पे कितना हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4, ये हो गया 1/4। तो इसमें से कौन सा बड़ा है, 1/2 बड़ा है या 1/4 बड़ा है? कोई बोलेगा सर नीचे में 4 है तो ये बड़ा होगा ना। नहीं, नीचे में जितना बड़ा फ्रैक्शन में, नीचे में जितना बड़ा संख्या होगा वो इतना छोटा होगा, ठीक है ना। देखो ना, ये भी फिगर में देखो ना, 1/2 इतना पोर्शन है पूरा, और 1/4 सिर्फ इतना पोर्शन है। तो हो गया ना 1/2 बड़ा। सो 1/2 हो गया बड़ा, ठीक है। सो 1/2 इज द बिगर वन। सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट, ठीक है। देखो, ये जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला सेक्शन है ना, यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, प्लीज रिमेन विथ मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। आई विल नॉट मेक इट सो लॉन्गर, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ मिनिमम टाइम लगे इसमें, बट योर अंडरस्टैंडिंग शुड बी प्रॉपर, ओके। फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल यूनिट एंड इक्वल शेयर। अब तो कुछ यूनिट भी होंगे ना। देखो, यहाँ पे दो स्टूडेंट है, बेनी एंड अरविंद। कुछ फ्रैक्शन इज बेटर बोल रहे हैं, 1/5 या 1/9। मैं पहले बोला था, अगर ऊपर में, देखो ये तो अभी डिस्कशन करने का टाइम नहीं है, आप लोग ये पहले ही जानते होंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कुछ पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन। ये जो हमने लिखा ना अभी, 1/2, 1/4 या 1/2, 1/4, इसमें जो नीचे में होता है ना उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर। आप लोगों में से कोई लोग ये जानते भी होंगे, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ। जो ऊपर में होता है ना उसको बोलते हैं न्यूमारेटर। क्या बोलते हैं, न्यूमारेटर, ठीक है। तो डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर। तो यहाँ पे देखो, एक क्वेश्चन किया छोटा मोटा कि 1/5 बड़ा होंगे या 1/9 बड़ा होंगे, कौन? देखो, जो न्यूमरेटर अगर इक्वल है तो मेरे को देखना है कि डिनोमिनेटर किसका बड़ा है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, मतलब नीचे वाला बड़ा होगा, यही सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1/5 बड़ा होगा क्योंकि 5 9 से छोटा है, ठीक है। ये फ्रैक्शन में और ऊपर में 1 है, ये इक्वल है, तो ये बड़ा होगा, ठीक है। अच्छा, ये पे ये सब एक्सप्लेन किया है, मैं आपको सीधा सीधा बोल रहा हूँ। इफ द रोटी इज शेयर्ड among 5 children, each one get a share of 1/5 roti. If one roti is shared with 9 children, सी ये इसको मतलब इन प्रैक्टिकली समझने के लिए, एक रोटी ऐसा है, ठीक है ना। इसका अगर चार मतलब 5 हिस्सा करें, 1 2 3 4 5, 5 इक्वल हिस्सा, तो एक किसी को अगर दिया गया तो जितना मिलेगा। अगर एक रोटी को 9 हिस्सा करें, 9, ठीक है, मतलब 9, तो एक को मिलेगा, 9 हिस्से में एक मिलेगा। तो एक रोटी का 5 हिस्से में से एक मिलने से ये बड़ा होगा, या 9 में से एक मिलेगा तो बड़ा होगा? ये 5 में से एक मिलेगा तो बड़ा होगा, ठीक है ना। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। सिमिलरली 1/100 इज बिगर देन 1/200, ठीक है ना। आपको ये सिर्फ ध्यान रखना कि जब कोई कंपैरिजन देगा तो आपको देखना कि ऊपर वाला
जो न्यूमरेटर है वो इक्वल है क्या? हाँ इक्वल है। देन नीचे में जो छोटा होगा वही बड़ा होगा फ्रैक्शन में, ठीक है। मैं ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। सो चलो, अब यहाँ पे व्हेन वन यूनिट इज डिवाइडेड इनटू सेवरल इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शनल यूनिट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फ्रैक्शनल यूनिट? When one unit is divided into several equal parts, each part is called a fractional unit. There are all fractional unit. These are नीचे में दिया गया example, ठीक है। We also sometimes refer to fraction unit as unit fractions. Fractional unit को कभी कभी unit fraction भी बोला जाता है, ठीक है। My dear student, let us move further. Okay. So hope you are getting my point and you are understanding the session with full enjoyment. Okay. So let us move further. ठीक है। सो यहाँ पे देखो, फिगर इट आउट। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिया है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। देखो, फिल द ब्लैंक्स विथ फ्रैक्शन। 3 guava टुगेदर वेट 1 kg। 3 guava मतलब क्या होता है? अमरूद। 3 अमरूद दिया गया, उस तीनों का मिला के 1 kg हुआ है। इफ दे आर ओरिजिनली ऑफ द सेम साइज, अगर ये सेम साइज का हो, each guava will roughly weight। सिंपल है माय डियर फ्रेंड। 3 guava है, आप कुछ खुद कर सकते हो, मैं फिर भी इसको मैं ड्राइंग, कुछ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो ऐसा, अगर ये 3 guava है, बोला ये guava तीनों का साइज सेम है, ठीक है। ये तीनों मिलके होता है कितना? 1 kg। तो एक एक का कितना होगा? इसको 3 से डिवाइड होगा ना, मतलब 1 किलो का, 1 किलो को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो कितना केजी होगा? आप इसको यहाँ पे लिख सकते हो 1/3 kg। हो गया। अच्छा, वेरी इजी था। ए होलसम मर्चेंट पैक्ड 1 kg ऑफ राइस इन 4 पैकेट। अब देखो, 1 kg चावल को 4 पैकेट में अगर समान इक्वली डाला गया पैकेट करने के लिए, ठीक है ना, ऐसे 4 किलो को ऐसे 4 पैकेट में, 1 किलो को 4 पैकेट में डाला गया, तो बोला दिस वेट ऑफ ईच पैकेट इज कितना होगा? देखो, 1 किलो को इसमें 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 इक्वली किया, यानी कि 4/1, 4/1, 4/1, 4/1, क्योंकि 4 हिस्से में डिवाइड किया इक्वली, तो 4 आएगा नीचे, ठीक है। टोटल कितना डिवाइड किया? 4। तो 4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ठीक है। ये आंसर होगा 1/4। दूसरा क्वेश्चन में क्या दिया? ठीक है, इसका मैं अच्छी तरह से सोल्यूशन करके रखा हूँ, फिर भी तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ताकि तुम लोग को बेसिक्स समझने में कोई दिक्कत ना हो। 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice and shared it equally among themselves. Each one drink glass of sugarcane juice. अब देखो, इन्होंने तो 3 ग्लास लिया था। 4 friends ordered 3 glasses of sugarcane juice। अब फ्रेंड्स हो गया 4, ये एक है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ठीक है ना। फ्रेंड है, फ्रेंड फ्रेंड सब फ्रेंड है। अब ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड है, ये एक फ्रेंड है। आप लोग, अपन लोगों ने 3 ग्लास जूस लिया, ठीक है। अभी अपन इसको 4 खाएंगे, ठीक है ना। 3 गिलास वाटर को 4 खाएंगे, तो कैसे करेंगे? इसको पहले 4 गिलास इसे 4 हिस्से में डिवाइड करना पड़ेगा ना। ये खाएगा, ये भी खाएगा, ये भी खाएगा, इक्वल इक्वल। तो ये 3 गिलास शुगर केन को 4 को खाना है, मतलब इसको 3 गिलास को 4 हिस्से में डिवाइड करना है। तो इसको कितना मिलेगा? इसको मिलेगा, नीचे में 4 आएगा, ऊपर में 3 आएगा। मतलब जितना चीज को आप डिवाइड कर रहे हो वही ऊपर आएगा। तो चार चार ये 3 गिलास का, ठीक है ना। इसको आप 4 डिवाइड कर रहे हो, तो 4 में से इसको भी मिलेगा 4/3, इसको भी मिलेगा 3/4, 3/4।
और 4/3, तो कितना हो जा रहा है देखो। 3 गिलास को अगर 4 से डिवाइड करते हो तो ये कितना मिल जाता है? 4, ऐसे मिलेगा ऐसे। देखो, 3 3 3 3 देखो, 3/4। ठीक है, ठीक बोला मैंने? कैसे ठीक बोला? देखो, शायद तुम लोग समझ में आ गया होगा ना। 3 गिलास का जो शुगर केन जूस है ना, उसको हम इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डालेंगे, बराबर करेंगे, तो हमको मिलेगा 3/4। 3 गिलास को हम 4 हिस्से में डिवाइड कर रहे हैं, तो 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 मिलेगा। ठीक है, ये आंसर होगा 3/4। ठीक है, एनी डाउट माय डियर स्टूडेंट्स? होप देयर इज नो डाउट। नाउ कम टू द पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में जाने से पहले आपको दिखाता हूँ। देखो, इसका आप एग्जाम में कैसे लिखोगे, ठीक है ना, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। इसका आंसर भी मेरे पास क्लियर रेडी है। देखो, 4 नंबर में क्या बोला, पहले समझ लेते हैं, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट। द बिग फिश वेट 1/2 kg, मतलब 500 ग्राम। द स्मॉल वन वेट 1/4 kg। टुगेदर दे वेट हाउ मच? द बिग फिश बोले 1/2 kg, स्मॉल फिश इज 1/4 kg। अब ये तीनों मिलके कितना केजी होगा? ठीक है, तो इसका जो प्रोसीजर है करने का, ये मैं दिखाया नहीं आपको। एक मैथमेटिशियन है, जिसका नाम है ब्रह्मगुप्ता। उसने एक इजी सॉल्यूशन दिया, उसी के हिसाब से हम ये उसका आपको दिखाएंगे, ठीक है, कैसे करता है। तो यहाँ पे जो एक दिखाया देखो, फ्रैक्शन है बिन, अच्छा यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका भी सॉल्यूशन। देखो, मैं आपको सॉल्यूशन पेज में गया था, ये वाला। मैं जो अभी तुम लोग करवाया था ना, उसका मैंने यहाँ पे दिखाया। देखो, 3 गो बस टुगेदर, पहले वाला यहाँ पे सोल्यूशन करके रखा मैंने। देखो, ये आंसर आया। क्वेश्चन नंबर 2 में था, क्या था कि 1 kg राइस और 4 पैकेट्स, 1 kg राइस का 4 पैकेट में डाल दिया, तो ये जो ड्राइंग है ना, ये ड्राइंग आप लोग कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन ये जो राइटिंग में लिख के रखा है ना, गिवन वेट ऑफ 3 guava 1 kg, देन वेट ऑफ ईच guava विल बी टोटल वेट 3 kg डिवाइड बाई। यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है मेरे को, ये जो है ना, ये मैं ठीक कर देता हूँ। ये जो है ना, ये टोटल वेट 3, ये 3 kg है, ठीक है ना, टोटल वेट 3 kg। ये 1 बाई द वेट ऑफ ईच गुआवा, ठीक है ना, ये होगा ऐसे, डिवाइड बाय टोटल 3 kg। द वेट ऑफ ईच ऑफ द गुआवा वुड बी ऐसा, 1/3 kg। ठीक है, ये वाला रॉन्ग प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है, हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द होलसम मर्चेंट टेक्ट 1 kg ऑफ राइस। ये देखो, इसमें नंबर ऑफ पैकेट्स, ठीक है ना, तो number of packets, 1 kg of rice is packed in 4 packets. So what of the each packet total weight divided by, ये होगा डिवाइड बाई वेट डिवाइड बाई नंबर ऑफ पैकेट्स। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 1 बाई होगा 1/4, तो ये आंसर होगा 1/4 kg। ठीक है, ये जो यहाँ पे फिगर है ना, फिगर दिया गया सिर्फ फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अच्छा, अभी हम जा रहा है आपका लेके क्वेश्चन नंबर 3, जो कि मैं वहाँ पे डिस्कशन पूरा नहीं पूरा किया था, ठीक है ना। इसका भी यहाँ पे दिया गया। देखो, अमाउंट ऑफ शुगर कैन कंज्यूम बाय 4 फ्रेंड्स 3 ग्लासेस, अमाउंट ऑफ शुगर कैन कंज्यूम बाय ईच फ्रेंड, ये हो गया। यहाँ पे एक फ्रैक्शन आएगा, यहाँ पे फ्रैक्शन आएगा, ये 34 नहीं, ये पे आपका होगा, यहाँ पे आपका होगा 3/4, आंसर होगा 3/4 ग्लास। ठीक है,
Hence each one have 3/4, ठीक है, 3/4 क्लास juices. Question 4, the big fish, अभी big fish आया, ठीक है ना. The big fish weight 1/2 kg and ये 1/4 kg. तो इसका जो तो नीचे करता हूँ तो नहीं दिखेगा. ये देखो इसमें फिश को क्या दिया गया, मैं दिखाता हूँ. क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ. ये जो है ना, यहाँ पे 1/2 होगा, यहाँ पे 1/4 होगा, ठीक है. अब यहाँ पे कितना होगा, इन देखो ये फिश बनाया. फॉर अंडरस्टैंडिंग, बिग फिश स्मॉल फिश, गिवन द वेट ऑफ द फिश विल बी 1/2 kg एंड सम ऑफ द एंड स्मॉल फिश 1/4 kg. फिर जब सम करेंगे ना, ये 1/2 1/4 ये हो जाएगा. ये देखो दिखाता हूँ मैं, ये वाला हिस्सा छोड़ो, ये ऐसा हो जाएगा. ये 1/2 प्लस 1/4, इसको करना पड़ता है एलसीएम. ये होता है डिनोमिनेटर 2 और 4. जब भी आप फ्रैक्शन का सम करोगे ना, यहाँ पे दिखाता हूँ, 1/2 प्लस 1/4, इसमें ये डिनोमिनेटर का एलसीएम करना पड़ता है, ठीक है. तो एलसीएम आपको जानते हो ना, आप करके आए हो क्लास 5 में, क्लास 4 में भी लास्ट प्रीवियस चैप्टर में क्या था. सो 2 पहले कॉमन लो, यहाँ पे 2 होगा. अभी क्या रहेगा, तो 2 × 1 × 2, तो इसका होगा एलसीएम होगा 4. एलसीएम 4 होता है, तो इसको एलसीएम करने के बाद इसको बोलते हैं ब्रह्मगुप्ता मेथड में जो करा रहा हूँ अभी सम करने का. तो ये 2 से इसको 4 पे डिवाइड करना पड़ता है, तो होगा 2. ये 2 से अब जो है ना न्यूमरेटर में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है. तो 2 1 जार 2. मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर से ये एलसीएम को डिवाइड किया, जो रिजल्ट आया उसी रिजल्ट को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया. इधर भी ऐसे करेंगे, 4/4 1 होगा, 1 × 1, बीच में प्लस सिंबल होगा, तो ऊपर में आएगा 3, नीचे में आएगा 4. सो दिस इज द आंसर. ओके, सो ये होगा 3/4 kg, 3/4 kg, ठीक है. होप दिस इज क्लियर टू यू. Shall I move forward? Yes, my dear students, I am moving forward. So, okay. So next question is question number 5. देखो, arrange this fraction word in the, क्या क्वेश्चन बोला पहले आपका, जो बुक का में क्वेश्चन वो देखते हैं. बुक में देखो ये 5 नंबर क्वेश्चन आने से पहले कुछ बताया गया, ठीक है. इसीलिए हम इसको पढ़ लेते हैं, क्या बताया गया. देखो, नॉलेज फ्रॉम द पास्ट, क्या बोला, फ्रैक्शन हैव बीन यूज्ड and named in India since ancient times. In the Rig Veda, the fraction 3/4 is referred to as Tripada. ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक है. इन ऋग वेदा the fraction 3/4 is referred to as a Tripada. This has the same meaning as the word 3/4 in many Indian language today. या 3/4. तीन पदा, तीन पाव, आप देखो 3, दैट इज 3 पाव in colloquial Hindi and Mukkal in Tamil. Indeed, words for fraction used today in many Indian languages. तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो त्रिपदा बोलते हैं, ट्राइब, ठीक है. Find out and discuss the word for the fraction that are used in the different languages. ये जरूरत नहीं है, ठीक है, ये जरूरत नहीं है. अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, उसमें हम आ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 5 में बोला क्या, ये पढ़ लेते हैं, फिर हम जाएंगे सोल्यूशन में, ठीक है. तो ये पे देखो बोला गया, अरेंज द फ्रैक्शन वर्ड्स इन ऑर्डर ऑफ साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द बिगेस्ट इन द एम्प्टी बॉक्स बेलो. 1.5, 3/4, 1.25, हाफ, क्वार्टर, 2.5, ठीक है. राइट योर आंसर हियर बोला. तो मैं इसका आंसर आपको दिखाता हूँ, मैं करके रखा हूँ.
यहाँ पे मैं इसके एनोटेशन को हटा देता हूँ। अब देखो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर रेडी है। मैं इसका भी समझाऊंगा तुमको स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। देखो क्वेश्चन भी ऊपर में दिखता है। अब यहाँ पे तो 1.5, 1.5 फ्रैक्शन, फ्रैक्शन एंड फिगर इसमें हमने ड्रॉ किया, ठीक है। मैं दोबारा आता हूँ, क्वेश्चन में क्या बोला था कि यहाँ पे arrange these fraction words in order of size from the smallest to the biggest in the empty box below. 1.5, 3/4, 1.25, हाफ क्वार्टर, 2.5, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो हमने इसका जो दिखाया ऐसे, पहले हम इसको फिगर में ड्रॉ किया, ठीक है। आप एग्जाम में ऐसे करो, अच्छा रहेगा। 1.5, इसका मतलब क्या है? 1.5 को जोड़ो तो 1 तो 1 है, इसको उसके पहले जोड़ रहा हूँ 1/2, तो दोनों जब जोड़ूंगा ना तो ये कैसे हुआ, ये भी दिखा देता हूँ। देखो ये जो हुआ, ये पे देखो जो हुआ 1 + 1/2, 1 होल कैसे हुआ देखो, 1 सिंपल। आप ऐसे 1 + 1/2 अगर होगा तो ये आपका हो जाएगा, जस्ट 1 मिनट, ये आपका हो जाएगा क्या, ये आपको यहाँ पे B1 है ना, कोई भी नंबर लिखोगे इसका नीचे में 1 होता है, तो 2 एंड 1 का एलसीएम होता है 2। अभी 1 से 2 को डिवाइड करो, रिजल्ट 2 होगा, 2 × 1 2 होगा, प्लस 2/2 1 होता है, 1 × 1 1 होता है, तो ये होगा 3/2। जब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लाओगे, 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 × 1 = 2, ये होता है 1, तो 1 ये 2 आता है नीचे, 1 जाता है ऊपर, ठीक है ना, ये आप लोग जानते हो। तो ये हो गया ना 1/2, 1 होल 1/2। अब इसको इतना सारा करने का भी जरूरत नहीं है, सिंपल एक तरीका सीख लेना। कुछ भी अगर नंबर ऐसे होता था 2 + 3/2, इसको सीधा लिख लेना, ये प्लस हटा के 2 होल 2/3। सिमिलरली 1 + 1/2 मतलब 1 होल 1/2 से प्लस को सिंपली यहाँ से हटा देना। तो यहाँ पे देखो ये भी ऐसे हो गया ना डायरेक्ट, फिगर में 1 फुल एंड 1.5। 3/4 मीन्स, क्वार्टर मीन्स 4, तो 3/4 मतलब 3/4, ठीक है, ये जान लेना। अच्छा, मतलब ये पूरा 4 में से, ये अगर मैं 4 पर करता हूँ, देखो, ठीक है ना, ये 3/4 मतलब क्या, 1 2 3, मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा मैं ले लिया, ठीक है। 1.25 मीन 1.25, ठीक है, 1 तो 1 लिया और क्वार्टर लिया 1/4, इसको जब सम करूंगा तो 1 and 1/4 होगा, बोला था ना। 1 + 1/4 कितना होगा, प्लस हटा दो बीच में से 1 होल 1/4, ठीक है ना। ये हाफ मीन्स 1/2 और क्वार्टर मीन्स 1/4। जब मैंने फिगर में ड्रॉ किया, आप लोग अगर फिगर ड्रॉ करने के लिए नहीं बोला तो फिगर ड्रॉ मत करो, ठीक है। क्वेश्चन में बोला था क्या फिगर ड्रॉ करने के लिए, जस्ट 1 मिनट देख लेता हूँ। One how the arrange them in front words in order ओके। तो इसको फिगर के लिए बोला नहीं था, बट फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि इसको अंडरस्टैंडिंग में आपको आसान रहेगा, ठीक है। आप ऐसे कर देना सीधा। आप देखो ये सब कर लिया मैंने, इसका जो वर्ड में बताया गया ना, इसका हमने मीनिंग निकाल दिया। नाउ अरेंजिंग देम फ्रैक्शन वर्ड इन ऑर्डर साइज फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट पार्ट। तो देखो यहाँ पे कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट होगा, देखो एकदम स्मॉलेस्ट कौन सा हो रहा है, ठीक है। ये पे देखो क्वार्टर, क्वार्टर, उसके बाद हाफ, उसके बाद 3/4, उसके बाद 1 and 1/4, 1.5, 2.5। कैसे पता चला, ठीक है ना। देखो क्वार्टर, कहाँ पे क्वार्टर था, यहाँ पे देखो, ये हिस्सा,
उससे छोटा है? उससे छोटा कोई है यहाँ पे? है। ये तो थ्री क्वार्टर है ना। देखो, जो व्हाइट वाला शेडो छोड़ के देखो, ये जो फिगर में ड्रॉ किया ना वहाँ पे देखो, ये सबसे छोटा छोटा जगह है, ठीक है ना। फिर आएगा ये हाफ, क्वार्टर के बाद आएगा हाफ, ठीक है ना। इसलिए क्वार्टर पहले छोटा, फिर हाफ आया, फिर हाफ के बाद आएगा थ्री क्वार्टर। देखो ये ये हो गया तो थ्री क्वार्टर, यहाँ फिर ये थ्री क्वार्टर, ठीक है। थ्री क्वार्टर के बाद आएगा ये वाला वन एंड क्वार्टर, ठीक है, वन एंड क्वार्टर। फिर आएगा वन एंड हाफ, वन एंड हाफ ये वाला। फिर आएगा थ्री एंड हाफ, ठीक है। तो ये इसे फिगर से भी समझ सकते हो, ठीक है ना। और उसका और एक तरीका भी है समझने के लिए, अब बताऊंगा मतलब नेक्स्ट सेशन में, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पे हमने इसको निकालने के लिए एक तरीका है, ये मैं अब डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये फिगर से कर दिया तो हो गया। नहीं तो और एक तरीका भी है, भी मैं बता ही देता हूँ, ठीक है ना। ये बोल देता हूँ, किसी किसी को अगर इतना फिगर करके अगर तकलीफ है, तो सिंपल तरीका जो है ना मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि ये तुम्हारा नेक्स्ट सेशन में है, नेक्स्ट, कि इसको कैसे कंपेयर करते हैं, मैं अभी आपको यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, ये जो अपन ने मिला, मेरे को ये मिला, ठीक है ना। ये एक्चुअली कितना है, ये देखो, ये क्या करता हूँ, वन होल वन बाई टू। ये अगर मैं लेता हूँ प्रॉपर फ्रैक्शन में, वन मिक्स फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में लेने के लिए आपको ये जो वन होल रहता है ना, वन इससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, फिर इनमें इसको सम करना पड़ता है। मतलब वन इंटू टू, टू प्लस वन होगा थ्री, तो ऊपर आएगा थ्री, नीचे आएगा टू, ठीक है ना। मतलब ये थ्री बाई फोर है, तो थ्री बाई, ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन में है ही है। ये हो गया थ्री बाई फोर, ठीक है। और यहाँ पे आ गया वन एंड वन बाई फोर, वन होल वन बाई फोर। इसको करेंगे तो वन इंटू फोर, वन इंटू फोर प्लस वन, ऊपर में आएगा फाइव, नीचे में आएगा फोर। यहाँ पे हाफ है, तो हाफ है डायरेक्टली हाफ, ठीक है। और यहाँ पे वन बाई फोर, ये वन बाई फोर लिखा, और ये टू होल हाफ, टू होल हाफ मतलब टू टू दर फोर प्लस वन, ऊपर आएगा फाइव, नीचे आएगा टू, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है ना। अभी ये थ्री बाई टू, थ्री बाई फोर, फाइव बाई फोर, वन बाई टू, वन बाई फोर, फाइव बाई टू, इसमें से हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, ठीक है ना। देखो, इसको करने के लिए एक तरीका है, सबका सामने से फ्रैक्शन दो, ठीक है, सबका सामने। अब मेरा मकसद क्या है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उसको कंपेयर करना है। देखो, इस केस में हमको सबका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो फ्रैक्शन है ना, इसका डिनोमिनेटर क्या है, टू, इसका है फोर, इसका है फोर, इसका है टू, इसका है फोर, इसका टू। तो ये पे जितना भी डिनोमिनेटर है ना उसका करो एलसीएम। कितना देखो, पहले था टू, फिर फोर, फिर फोर, फिर टू, फिर फोर, फिर टू, ठीक है ना। तो इस सबका अगर एलसीएम करूंगा, कितना हो गया, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, ठीक है ना। टू, फोर, फोर, टू, फोर, टू, एलसीएम होगा तो टू कॉमन आएगा, वन, या पे टू, या पे टू, या पे वन, या पे टू, या पे वन। आई होप यू नो दिस, ठीक है। दैट्स व्हाई आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग एलसीएम टू those who had not yet completed these parts, that how to find out the LCM. Please write me in the comment box, okay. I will come up with another videos on how to find out the LCM of given numbers, ठीक है। सो टू वन द टू, टू वन द टू, वन तो वन रहेगा वन, सो इसका एलसीएम होएगा टू इंटू टू, फोर, ठीक है। तो देखो, सबका यहाँ पे फोर करना है, सबका फोर करना है, सबका फोर करना है, सबका फोर करना है, सबका फोर करना है, फोर करना है, ठीक है। अब देखो, इसको अगर फोर हो गया, यहाँ पे टू से फोर हो गया, ये था थ्री अपन टू, अभी नीचे में टू था, फोर हो गया,
तो मतलब ये 2 टाइम्स इंक्रीज हुआ, तो ऊपर भी, नीचे में 2 टाइम इंक्रीज हुआ, तो ऊपर में भी 2 टाइम इंक्रीज करना पड़ेगा, तो भी जाके इसका वैल्यू इक्वल रहेगा। ठीक है ना? समझ में आ रहा होगा आप लोगों को? 2 से 4 हो गया नीचे में, मतलब डिनोमिनेटर में, मतलब ये कितना टाइम बढ़ा, 2 टाइम्स, 2 टू द 4। तो ऊपर में जो 3 है ना, वो भी 2 टाइम्स हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 3 टू द 6। और यहाँ पे देखो नीचे में 4 था, 4 रह गया, मतलब एक गुना हुआ सिर्फ, तो वो भी 3 3 ही रहेगा। इसमें भी देखो 4 4 था, ये पे सिर्फ 5 5 रहेगा। यहाँ पे 2 से 4 हो गया, मतलब ऊपर में भी दोगुना होगा, 1 इंटू 2 2। यहाँ पे नीचे में देखो 4 इंटू 4, ये 1 है, तो ये पे एक गुना बढ़ा, तो ये भी एक गुना, 1 इंटू 1। 2 से 2 डबल हो गया, तो 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखो, ये जो 1 2 3 4 5 छह फ्रैक्शन है ना, उसमें से सबका नीचे में 4 है। अभी ऊपर में मतलब न्यूमरेटर, if the denominators of all the fraction given fractions are equal, then we will check the numerator. The greater the numerator, the number is greater. Smaller the numerator, the number is smaller. Okay? So यहाँ पे सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। ये इसका मतलब 1/4 जो है ना, ये सबसे छोटा होगा। फिर कौन सा आएगा? 1 के बाद 2 आएगा, ये 2/4 मतलब 1/2 हाफ। फिर कौन सा आएगा? 3 3/4 मतलब ये आएगा 3/4। फिर कौन सा आएगा? 3 के बाद यहाँ पे देखो, ये आएगा 5/4। नहीं, ये 2/4 भी तो था, अच्छा, ये ले लिया था 1/2। आएगा 5/4, यानी कि वन होल, 1/4। ठीक है ना? अच्छा, फिर आएगा 6/4, यानी कि 1/2। फिर आएगा 10/4, यानी कि 2 होल 1/2। ठीक है ना? तो यहाँ से आपको ये ऐसे निकल सकते हो। ठीक है ना? ये आपको अगर इसे ड्राइंग नहीं करना है, तो आपको ऐसे निकल सकते हो। ठीक है ना? सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप्स। होप दिस इज क्लियर टू यू, माय डियर स्टूडेंट्स। मैं ये वीडियो ज़्यादा लंगर नहीं करूँगा। ये ये चैप्टर को 4 डिफरेंट पार्ट्स में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो डोंट वरी, आई एम हियर along with you. I will not make you feel bad during this video. So let us move to the next part. Okay? So next part में क्या है ना, मैं जाता हूँ आपका बुक में। ठीक है? यहाँ पे देखो, फ्रैक्शनल यूनिट्स एज ए पार्ट ऑफ ए होल, ये मैं आप लोगों को पहले समझा दिया था। यहाँ पे एक होल बिस्किट है, चिक्की बोला, चिक्की है, होल चिक्की। इसमें से देखो, इसको पहले 4 हिस्सा किया, ऐसे 4 हिस्से में काट लिया उसको। ठीक है ना? इसको ऐसे 4 हिस्से में पहले इसको डिवाइड किया, करके ये हिस्सा को अलग कर दिया। देखो, ये अलग कर दिया, ये हो गया ना। ये क्या हो गया? ये बोला 3/4, मतलब 3/4 क्यों हुआ? देखो, the picture of chickpea broken into 2 pieces is showing the value. How much of the original chickpea is each piece? कितना पीस किया इसमें बोला? A picture of chickpea broken into 2 pieces in shown in figure. How much of the original chickpea? अच्छा, अब ये ओरिजिनल कितना रह जाएगा? ये तो निकल गया, 1/4 पार्ट निकल गया, बाकी 1 2 3 मतलब 3/4 रह गया। तो ये हो गया 3/4, नॉट दिस। ठीक है? ये हो गया 3/4। समझ में आया? चलो, अब नेक्स्ट में दिखाता हूँ क्या है। धीरे धीरे चलते हैं हम सेक्शन में। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे इस तरह से, ठीक, इसको 6 टुकड़ा किया था, 1 2 3। तो जब 6 किया तो 1/6 अवश्य जरूर लगी है।
इसको एक, ये लो, 6 हिस्सा किया। 2 3 4 5 6, इसमें से एक ले लिया, तो ये होगा ना 1/6। ठीक है ना, बाकी कितना रह गया? बाकी रह गया 5/6। क्योंकि एक चला जाएगा तो 1 2 3 4 5 रहेगा, तो 5/6 रहेगा। मतलब 6 में से 5 रह जाएगा और 6 में से एक निकल जाएगा। आप ये पे तो गया क्या? ये 1/6 कर दिया ये हिस्सा को ना, एक ठीक से दिखाई नहीं है। यहाँ पे 1/6 कैसे किया देखो। इन्होंने इसको ऐसे काटा, ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा, फिर ऐसे काटा। देखो, इसमें 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। तो 6 में से एक, ये वाला पोर्शन को इसने काट के अलग कर दिया, देखो ये वाला। तो 6 में से एक ले लिया, मतलब 1/6। कितना रह गया? 5/6 रह गया। ठीक है ना? इस तरह से इसको अलग कर सकते, फ्रैक्शन बना सकते हैं। तो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, माय डियर स्टूडेंट्स। लेट अस गो टू द नेक्स्ट। मैं पहले आपका बुक का सारे बेसिक क्लियर करवाता हूँ, ठीक है? यहाँ पे भी ऐसा ही है, ठीक है? ये डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप बोले कि फिगर इट आउट, इसमें देखेंगे क्या करता है। देखो, वेरी इजी। द फिगर below show different fractional unit of a whole chickpea. How much of whole chickpea is each piece? अब देखो, ये पे आंसर आपको लिखना है, ठीक है? अब मैं दिखाता हूँ। इसका भी मैंने सॉल्व करके रखा है, ठीक है? चिक्की वाला, देखो ये चिक्की वाला, ठीक है? यहाँ पे ये होल चिक्की, ये वाला होगा होल चिक्की, ठीक है ना? ये होल चिक्की, होल में से, समझ रहे हो? नहीं नहीं समझ रहे हो? उधर जाऊं, एक होल चिक्की से ना इसको काटा गया। इसमें कितना पार्ट है आपको बताना है। इसीलिए मैं यहाँ पे ड्राइंग दिखा दिया। ये वाला है होल चिक्की, देखो इसमें देखो कितना पोर्शन है टोटल, देख लो। ये पे जो है ना, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो चिक्की है ना, इसको देखो, ये मार्क करके रखा ना, ये मार्क देखो, ऐसे 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 से मार्क किया, ऐसे ऐसे मार्क किया। ये मार्क दिखाई दे रहा है ना? ये तो मैं इसको डीप दे रहा हूँ। और ये ये चिक्की, चिक्की तुम लोगों ने खाया होगा ना? हाँ, ये बनता है किससे? सीसेमम, इससे, ये, ठीक है ना? तो इसमें कितना पार्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। अभी 24, ठीक है ना? तो 24 अगर पीस है चिक्की में, तो गेट पीस बाय ब्रेकिंग द चिक्की into 12 इक्वल पार्ट, hence it is 12। अच्छा, हमने कितना लिया? जस्ट 1 मिनट, होल्ड ऑन। ये तो आपका क्वेश्चन है, साइज किया रख लेता हूँ, ठीक है? The figure below shows different fractional unit of whole chickpea. How much of a whole chickpea is each piece? अच्छा, अच्छा solution is
12. We get its इसने में क्या बोला? We get this piece by breaking the chickpea into 12 equal parts. Hence, it is 12. We get this piece by breaking the chickpea into 4 equal parts. Hence, it is fraction of 1 by 4. अच्छा, बी में fraction of 1 by 4. जस्ट मिनट, देखो यहाँ पे मैंने एक चीज बता देता हूँ। ये जो है, ये वाला फिगर से लिया। देखो, आपका बुक में जो फिगर है ना, राइट इज द, ये वाला से लिया, ये फिगर से लिया, ठीक है। तो ये पे देखो इसका कितना पिक्चर है, कितना हिस्सा है, डिवाइड है उसका, ये देख लेता हूँ, ठीक है पहले। ये आपका, यहाँ पे तो कितना किया, होल चिक्की को देखो, ये यहाँ से कट किया, यहाँ से कट किया, और यहाँ से कट किया। कितना पीस हो गया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये each piece we get this piece by breaking the chicken into 3। तो अच्छा, 3 पीस, 1 2 3। सिमिलरली अगर हम जब जाते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये ए का आंसर हो जाएगा। देखो देखो, ये इसका मैं होल काउंट करता हूँ, तो इसमें आपको ये हिस्सा है, ये कितना है, 1 2, ये वाला लिया। ये पोर्शन, जस्ट मिनट, ये नोटेशन में लगाता हूँ। देखो, ये जो पोर्शन है आपका, इसको हटा देंगे। ये देखो, ये इसे तो इसका यहाँ पे पुट करते हैं ना, ये ओनली दिस मच हैज बीन कटेड फ्रॉम हियर। तो ये कितना पोर्शन हो गया, देखो ये पे होगा 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 है ना। तो ये 24 में से कितना है, 2 है। ये जो है ना, 24 में से 2 लिया गया, ठीक है ना। इसको अगर काटोगे तो 1/12, तो ये आंसर होगा 1/12, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे तो कितना लिया, ये पे एक फिगर बनाया था ना उस टाइम पे मैंने, ऐसे देखो, बुक से लेता हूँ ये फिगर। देखो यहाँ पे जो काटेंगे था ना, ये था कि 1/6, ये पूरा हिस्सा से, तो ये आंसर होगा आपका 1/6, सिंपल, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर लिख देता हूँ, इसका आंसर होगा, उतना बहुत ऊपर आएगा, नीचे आएगा थोड़ा, नंबर 12, तो ये हो जाएगा आपका। मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ क्योंकि आपको ये समझना चाहिए ना। ये हो गया 1/6। ये कितना हो जाएगा, इसके लिए फिर मेरे को ये फिगर में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इसे, देखो ये हिस्सा ऐसे कर दिया, यहाँ से काट के ऐसे किया, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा, इधर से भी कटेगा। तो कितना हो गया ये पे देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कटिंग थोड़ा मैं ठीक से करता हूँ, लेकिन ये मैं अगर ड्राइंग ठीक से करता हूँ इसमें, वैसे इसको पहले तो ऐसे टुकड़ा किया, ठीक है, जैसे भी एकदम बीच में काट किया, फिर इसको यहाँ से काटा, फिर इसको यहाँ से काटा, तभी ना मिला ये हिस्सा, देखो। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 में से
एक, ये 6 में से एक, ये 12 में से एक, ये हो जाएगा। इसका कटिंग करेंगे तो ऐसे, ऐसे, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6 में से एक। ठीक है, होप यू आर गेटिंग मी। नेक्स्ट हम जाते हैं इसमें, देखो। ठीक है, इसमें भी यहाँ पे क्या क्या देखो, ये फिगर एट ए टाइम होना चाहिए मतलब सामने, सामने देखो। ये क्या, दो दो नहीं आला, दो नहीं, यहाँ पे दो गया था। जो नेक्स्ट वाला था ना, उसमें आपको ऐसे लिया उन्होंने, ऐसे, ऐसे, ऐसे लिया, इसको लिया। तो इस तरह से टोटल कितना मिलता है यहाँ पे देखो। ये ये दो हो गया, ठीक है ना। फिर ये एक हो जाएगा, ये हो जाएगा, 1 2 3 4 मिल गया। वो अभी 4 मिलेगा, 8 हो गया, तो 1/8। ये हो जाएगा आपको 1/8। ये होगा 1/8। तो ये आप लोग करना, मैं जब दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ये बड़ा वाला हिस्से को इसमें से मैच करके करवाना, ठीक है। इसमें मैंने और टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं मेन चीज़ बता दिया कैसे करना है। अभी आप लोग इसको ट्राई करो, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैं जाता हूँ नेक्स्ट पोर्शन में, ठीक है। चलो, ये मेजरिंग यूजिंग फ्रैक्शनल यूनिट, ठीक है, ये वाला हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तो आज और वीडियो को डिले नहीं करता हूँ, आज यहाँ तक ही है। तो थैंक you very much, my dear students. Tata, bye bye. I'll get you back in the next video with the rest of the portion. Okay. Thank you. Bye.